Jai Hind everyone, welcome to Rafael Academy. So students, as you know all know that we have started a computer fundamental series. So in this series, this is the third lecture, and in this lecture we will discuss about the number system. In the number system, why we require number system? Because you all know very well that computer understand only machine language. Computer understand only machine language, and that language is in the form of bit. Now you are thinking that what is bit, what is the bit? So student, before understand bit we have to understand about 0 and 1 form. So this, as you know that 0 and 1 is called as bit. 0 is a bit and 1 is also a bit. So student, 0 and 1 is called bit. So before understanding this, we have to understand computer only understand only numbers. So when we enter data, the data is converted into the when we enter data, जब हम डाटा एंटर करते हैं, then it converts into the electrical या electronic pulse. And the electronic pulse, what is electronical pulse? When we have to enter 0, sorry, when we have to enter 0, then it means not present, and we enter 1, it means yes, yes, or we can say it means present. तो यहाँ पे जो 0 1 होता है, इसका हमारा क्या यूज़ है? अगर हम 0 और 1 का यूज़ तब करते हैं जब डाटा क्या होता है, हमें प्रेजेंट और नोट प्रेजेंट दिखाना होता है, या कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी नंबर्स को. और बाइनरी नंबर्स क्या होता है? बाइनरी नंबर्स होता है कलेक्शन ऑफ द टू बिट. टू बिट कौन कौन सी होती है? आप बोलोगे दैट इज 0 and 1. सो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1 फॉर्म. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. machine language that is understood by computer. So before understanding machine language, we have to understand about the binary number system, octal number system, decimal number system, and hexadecimal number system. Now you are thinking that what is binary, what is octal decimal, and what is decimal and hexadecimal. Now you are thinking about this. Before understand this, we have to understand 0 and 1. This is the binary. This is the binary number system. So now we have to start binary number system. And in the binary number system there are only two digits, which are called, as I already told you, that these both are called bit. So binary number system क्या होता है? जिसके अंदर 2 बिट होती है and the base is 2, as I showed at here. So accordingly, in this number system there are only two types of electronical pulse. As I already told you, the absence of electronic pulse is denoted by 0 and the presence of electronic pulse is denoted by 1. I hope you all are understanding this. So if I told about 4 digit, a group of 4 digit is called nibble, NIBBLE, and the group of 8 digit is called byte. So this is the basic only. इसमें हम क्या करेंगे, खाली एक बेसिक डिस्कस करने वाले हैं. अगर हमको या आपको जानना है कि इसको ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी और कैसे यूज़ करेंगे हम, देखो अभी तो ये बता दिया कंप्यूटर ओनली मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? 0 1 की फॉर्म में होती है. अब आप बोलोगे सर ये तो कंप्यूटर में अगर हम 1 0 10 लिख रहे हैं या हम 12 लिख रहे हैं तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा? बच्चा, इसको भी समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 12 को क्या करना होगा, एक बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना होगा. हमें नहीं, ये कंप्यूटर खुद ही कर लेता है, बस मैं बता रहा हूँ. ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने कन्वर्टेशन लेके आएंगे. कन्वर्टेशन में आपको बताएंगे कि कैसे हम बाइनरी डिजिट को ऑक्टल को बाइनरी डिजिट में, हेक्साडेसिमल को कैसे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल को कैसे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं. अभी ये जस्ट बेसिक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आई थिंक दैट आई विल प्रोवाइड यू लोट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर सिस्टम. सो
Now we will understand about the octal number system. There are only 7 digits. सॉरी, देयर आर ओनली 8 डिजिट. जीरो से स्टार्ट होती है और 7 पे ला के एंड हो जाती है. 0 1 2 3 4. आप इनको काउंट भी करोगे तो देयर आर ओनली 8 डिजिट्स आर हेयर. सो इसीलिए इसका क्या कहा जाता है, इसलिए इसके बेस को क्या बोलते हैं, 8 बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 8 डिजिट्स हैं. अगर हम इसमें बात करें, इसका 8 बेस होने के कारण हम इसे, अब इस देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3, सॉरी 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं. यहाँ पे ये क्या होता है, एक नंबर जिसे अगर हम इसे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे हम 1 1 1 करके लिख सकते हैं, बिकॉज 0 और 1 की फॉर्म में ही बाइनरी डिजिट होती है. इसे 1 1 लिखने का कारण वो आपको पता लग जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ. 1 1 1 ये दे रखा है. अगर हमें इसे पता करना है कि ये कितना है, ऐसे 1 1 लिखा हुआ है और इसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे सर इसे 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर, अभी हम यहाँ पे डिजिट पता कर रहे हैं कि कितनी डिजिट होगी, 2 टू दी पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2. आप इसका सॉल्यूशन करोगे, आप बोलोगे सर ये तो 1 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया, ये 2 आ गया, प्लस यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 7. तो ये कितने डिजिट हैं. आप सॉरी, इसका हाईएस्ट डिजिट क्या होगी, हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट आप बोलोगे सर 7. क्या 7 है क्या हाईएस्ट, देख लेते हैं भाई साहब. ये देखो 7 यहाँ पे हाईएस्ट दे रखा है, तो 0 से लेके 7 क्या होगा इसका हाईएस्ट. अगर मैं पूछूं इसको बाइनरी डिजिट में ही बताओ लोवेस्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर 0 0 0, क्योंकि ये 3 बिट का एक कलेक्शन होगा. अगर हम ऑक्टल की बात करें तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द 3 बिट्स. ठीक है, चलो अब इसके बाद हम डेसिमल समझ लेते हैं. डेसिमल में आपको ऑलरेडी पता है, आप जानते हैं, मैं आपसे बोला कि भाई चलो मेरे को गिनती सुनाओ, आप बोलोगे सर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अरे यार, लेकिन आपने एक चीज़ मिस कर दी. ये चीज़ें मैं बताता हूँ बच्चों को, अगर नेचुरल नंबर या नंबर वगैरह के बारे में बताता हूँ तो मैं तब इसके बारे में बताता हूँ. होल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं इनके बारे में बताता हूँ. नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4. आप बोलोगे सर ये मैथ कहाँ से घुसा दिया इसमें. देखो मैं एक्चुअली मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ और इसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कंप्यूटर भी, इसलिए मैंने इसको सोचा है बच्चों के सामने ये चीज़ें भी डिस्कस की जाए. सो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया तो इसको होल नंबर बोलते हैं. बट यार आप ये सोच रहे हो कि सर क्या बताने लग रहे हैं, बताता हूँ. देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं. जो डेसिमल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और 9 पे ला के एंड हो जाते हैं, इसलिए इसका बेस क्या कहलाया जाता है, 10 कहलाया जाता है. 10 क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि हम काउंट करेंगे ये टोटल कितनी डिजिट हैं, 10 डिजिट्स आर हेयर. ठीक है. सो इन दिस नंबर सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ 9. 9 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड द मिनिमम वैल्यू वुड बी 0. ये मैंने बता दिया है पहले ही. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेक्साडेसिमल. सो व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल. सो हेक्साडेसिमल में इसमें हम क्या होंगे, ये एक नंबर सिस्टम है. इट इज़ अ नंबर सिस्टम ऑफ 16 डिजिट. 16 डिजिट का एक नंबर सिस्टम है जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, पहले 0 से लेकर 9 तक होती है और उसके बाद A to F होती है. अरे ये क्या लोच आ गया भाई साहब, A to F एंड 0 to 9, कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझा देते हैं. आप बोलोगे सर ये 16 डिजिट होती हैं, तो पहले लिख लो, पहले 16 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. अपने आप काउंट करोगे तो 15 तक अगर हम इसे काउंट करने लगूँ तो 16 डिजिट बैटरी है. 16 डिजिट में ये जो 9 तक होगी ये होगी, आप बोले सर ये तो डेसिमल में हमने पढ़ लिया, 0 से लेकर 9 तक जो होती है डेसिमल होती है. उसके बाद भी तो कुछ नंबर होंगे, उसके बाद भी तो कोई डिजिट स्टार्ट होती है, तो उसमें बोलते हैं हम हेक्साडेसिमल. 0 से और 10 11 12 13 14 एंड 15. इसको हम डिनोट करते हैं A to F, A B C D E F. सो A को किससे डिनोट करेंगे, आप बोलोगे सर 10. अगर 11 लिखा आया है तो आप बोलोगे सर B हो गया, 12 आया तो बोलोगे C हो गया, और 13 आया तो आप बोलोगे सर ये D हो गया. तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं. वो चीज़ें आपको जब मैं कन्वर्टेशन पढ़ाऊँगा आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगी. यहाँ पे मैं सोचना 24 इज टू क्या लिखा है, देखो 2 टू दी पावर 4 इज टू 16 होता है. जैसे मैं आपको पहले ही बताया, तो ये क्या होगा, एक कलेक्शन होगा ऑफ द 4 बिट. ये पावर में 4 है तो आप बोलोगे सर 4 बिट का कोई कलेक्शन होगा. अब यहाँ से मैं आपको इसका सोल्यूशन पूछूंगा, आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू 15 आएगी, निकाल के इसका हम सोल्यूशन करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 15 निकल के आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि ऑक्टाडेसिमल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है. और जो
हेक्साडेसिमल होता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर सिस्टम। इट यूजेस बोथ न्यूमरिक एंड अल्फ़ाबेट्स। सो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। सो ये चीज़ें हम समझेंगे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली नंबर्स, केवल नंबर ही समझ में आते हैं कंप्यूटर को, और वो भी 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर 0 1 दो ही होगा? नहीं जी भाई, इनका कलेक्शन भी हो सकता है 1 1 1, जैसे मैंने बता दिया आपको 1 1 1 1 0 1 0 1, ऐसे करके कंप्यूटर समझता है। इसमें ये नहीं ज़रूरी कि ये केवल नंबर ही नंबर को पढ़ेगा, ये ABCDEFGHIJ इन सबको भी पढ़ेगा एक नंबर की फॉर्म में। सो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1 फॉर्म, मीन्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली machine language. So I hope this would be better for you and you have understand all the things that I already told you. So students, मैं भी थक गया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। उसके बाद आई थिंक मैं अभी कंटिन्यू ही करूँगा आपके साथ में, और ये कोर्स कंप्लीट करके आपके सामने लेके आऊँगा। मैं इसको हर तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कन्वर्टेशन किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, बाइनरी डिजिट को कैसे डेसिमल में, और डेसिमल को कैसे बाइनरी डिजिट में, ऑक्टाडेसिमल में कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं आपस में। ये चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, टेक केयर।